three items which the GOM had recommended at one level. After discussion in the committee, in the GST Council, we have brought in changes. They are particularly one item which is the furnaces, the electric furnaces which are used in the crematoriums. The GOM had recommended 12%. We, after the discussion in the Council, have brought it down further to 5%. Then temperature checking equipments, the GOM recommended 18%. After discussion in the Council today, we are bringing it down to 5%. And the third item, which is the ambulances, the GOM had recommended at 28 because it has a different connotation to the automobile sector. But even then, because it's for a limited period and because it's a very enduring asset for the hospitals, even with depreciating value, nevertheless, we thought even ambulances should be brought down. So the GOM's recommendation of 28 for the ambulance has been brought down to 12%. ये जो सेकंड वेव थी, देश के लिए सेकंड वेव थी, हमारे दिल्ली के लिए तो ये चौथी वेव थी। इसका बड़ा संघर्ष और बड़े अनुशासन के साथ सब लोगों ने मिलके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके इसका सामना किया और इस पे काबू पाने में हम लोग सफल रहे। पीक केसेस, डेली केसेस लगभग 4,500 के करीब थे। जो दूसरी वेव सितंबर में आई थी पिछले साल, उसमें लगभग 6,000 के करीब केस थे। जो तीसरी वेव आई थी उसमें 8,500 डेली पीक थी, और ये जो चौथी वेव आई थी इसमें 8,500 से एकदम से 28,000 केसेस डेली आ रहे थे। और केवल नंबर ऑफ केसेस नहीं बढ़े, बल्कि उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा सीवियर थी। बहुत इस बार जो लोग बीमार पड़ रहे थे, बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे थे, और इस बार हमने कई सारे लोगों को खोया। बहुत ज्यादा दिक्कत आई हमें। तो अब अपने को तैयारी करनी है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तीसरी वेव आने के चांसेस काफी रियल हैं। जब तीसरी वेव आएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बीच में हमने कुछ नहीं किया। तो आपकी सरकार इस वक्त युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रही है। This state did not merge. It joined the Union of India on certain terms, and one of the terms was Article 370. And there are 2 already Supreme Court verdicts on this of the triple bench, 2 judgments, which clearly state that this is a permanent feature now. But our political party in power in Delhi has a long-standing political statement of their party, not of the nation, of the party, that they will abrogate it, and they did this against the wishes of the people of the state. And all 3 regions opposed this view, and we continue to do so against what they have done. And I'm very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of the people, as other parties of the nation who have also spoken about it. And they are very clear about it, that what you have done, you are losing the will of the people for the nation. And I think he has done well, and I welcome it heartily, and I hope that the present government will look into this again and try and win the heart of the people of the state. And that can only be won if they reverse what they did on the 5th of August 2019.
साफ साफ है कि कैप्टन साहब को मोदी जी का आशीर्वाद है। ये रिपोर्ट एक्चुअली कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को मोदी जी के आशीर्वाद के रूप में जारी की गई है। पंजाब के सरकारी स्कूलों को नंबर 1 बता रही है मोदी जी की रिपोर्ट। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पंजाब के सरकारी स्कूल देश में सबसे बढ़िया है। कैप्टन साहब ने सरकारी स्कूलों में जो काम किया है वो नंबर 1 है देश में। अब खबर तो ये भी आ रही है कि थोड़े दिन बाद मोदी जी एक रिपोर्ट जारी करेंगे जिसमें कहेंगे कि पंजाब में कैप्टन साहब के सारे सरकारी अस्पताल बहुत बढ़िया हैं। ये जुगलबंदी है मोदी जी की और कैप्टन साहब की पूरी तरह से। जो पंजाब के सरकारी स्कूल जो पूरी तरह से बदहाल हैं, वहाँ पे ना पढ़ाई हो रही है, ना वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, ना कोई काम हुआ है, उसको छिपाने के लिए कैप्टन साहब की पिछले 5 साल की शिक्षा के क्षेत्र में नाकामी को छिपाने के लिए मोदी जी ने रिपोर्ट जारी की है कि कैप्टन साहब के स्कूल बहुत शानदार है। कैप्टन साहब ने 800 सरकारी स्कूल बंद किए पिछले 2-3 साल में। 800 पंजाब के 800 सरकारी स्कूलों को कैप्टन साहब बंद कराते हैं, और जो चल रहे हैं उनमें से कितनों कोई प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 है। आज हम सब के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे यहाँ एक और नया जहाज आया है, जो अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र श्री अजीत डोवाल साहब ने इसको कमीशन किया था, कमीशनिंग किया था दिल्ली से। और हमें बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि हमारे गुजरात राज्य के लिए ये हमारे पास में नया शिप आया है। और ये शिप जो है सबसे बड़ा जहाज़ है, अत्याधुनिक जहाज़ है, और इसकी जो क्षमता है वो बहुत ही सराहनीय है। इस जहाज़ में हेलीकॉप्टर भी रहेगा, और ये जहाज़ 1 महीना तक जो है वो समुद्र में रह सकता है, किनारे आने की ज़रूरत नहीं है। इसके पास में इतना राशन पानी, तेल पानी इतना होता है कि ये कम से कम 1 महीने तक जो है ये बाहर रह सकता है। हमारे कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ वेस्ट गुजरात के लिए बड़ी खुशी है कि हमारे कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर ने जो है एक जहाज़ को यहाँ पे बेस किया है। और मुझे और भी खुशी इस बात की है कि जो चौथा शिप बन रहा है, इस तरह के टोटल 11 शिप बन रहे हैं। ये नवा शिप है, 9th शिप है ये कोस्ट गार्ड के लिए। इसके बाद 2 शिप और बन रहे हैं। जो 10वां शिप है उसका नाम सार्थक है, वो जहाज़ 3 महीने के बाद यहाँ पे आएगा। ये सजग जो है ये मल्टीपर्पस शिप है। ये हर काम में जो है इसकी जो है क्षमता है, चाहे सर्च एंड रेस्क्यू है, चाहे आपका पोल्यूशन कंट्रोल है, चाहे आपका जितने भी आपके एंटी सोशल एलिमेंट्स या तस्करी को रोकना है, ये जो वेसल है ये हर कार्य के लिए जो है ये सक्षम है।
आज बहुजन समाज पार्टी, जो कि एक नेशनल पार्टी है, उसका गठबंधन पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के साथ में हो रहा है और हो गया है। ये गठबंधन 25 साल आपस में बिछड़ने के बाद दोबारा हुआ है और चूंकि ये 25 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं, तो जैसा कि अभी सुखबीर जी ने कहा कि ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है और ये गठबंधन हमारा हमेशा चलता रहेगा। बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता इस गठबंधन का तहे दिल से स्वागत कर रहा है। कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है, लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी, आतंकवाद को प्रश्रय देगी? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है। जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। सोनिया जी जवाब दो, देश आपसे जवाब चाहता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.